So we are live. Let me just check if any eyes I could get. Yeah, I have got one eye. If any eyes I could get. Assalamu alaikum everyone. I am Rimsha Farhan and I am the face behind our little bubble. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब जहाँ कहीं भी होंगे you will be happy, healthy, satisfied and peaceful. क्योंकि जिंदगी में कभी-कभी खुश रहने से भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है मुतमईन रहना. और here I am getting Mehreen Naeem, Umme Ahmed Raza and two more eyes which I didn't know who is this. Solia Khurshid is watching. Thank you Solia for coming. Tell me girls if I am audible to you. मुझे बताएं आप लोग. Okay, जी, shall we start? तो जी, कराची, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, दुबई और उसके मज़ाफ़ात में एक ज़बरदस्त से लाइव सेशन का वक्त हुआ चाहता है. I have started an initiative of cheering up a community leader. So let me just tell you थोड़ी सी चीज के क्या होता है community leader. Girls, it's not easy being a person who has the strongest ability to inspire others, who possesses empathy, or who can bring people towards a platform, who constantly raising up their morale high, and who can lead her members towards one common goal. And here I have one community leader who has all those qualities which I have mentioned. She is proficient, she is hardworking, she is the founder of Karachi Schools and Guide, plus she has another venture which is Desi Mom Blogger. She has made her space as an entrepreneur which is named The Station, and marvelous. She is humorous, she is witty, she is responsible. Let's have Beenish Umair with us on our live session. Hello, Beenish. Hello, everyone. I'm so excited to be here. Thank you so much, Rimsha, for inviting me here. Thank you so much for coming over here and joining me. And I am so excited to have this kind of live session with you. और ये मुझे बताएं क्या हो रहा है आजकल, कैसा चल रहा है सब कुछ? बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है. सब लोग समझते हैं कि स्कूल्स बंद थी तो हमारा काम रुका हुआ था, बट आई हैव टू टेल देम एक्चुअली कि अगर आप एक्टिव नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम एक्टिव नहीं है, हम वैसे के वैसे ही हैं. इनफैक्ट काम बढ़ा हुआ ही है. सो या थिंग्स अलोंग विद फैमिली लाइफ गोइंग ऑन. अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द ब्लेसिंग्स, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर सर्वाइविंग. Binish, you would like to tell something about yourself? यार तुमने इंट्रोडक्शन में तो बता दिया, अब और क्या बताऊं मैं आगे कि आई एम रनिंग दिस कम्युनिटी कराची स्कूल्स गाइड सिंस लास्ट 6 years. अब 7 साल हो जाएंगे सितंबर में इंशाल्लाह. साथ साथ मेरा एक ब्लॉग है देसी मॉम ब्लॉगर, जहां पे मैं अपनी पेरेंटिंग जर्नी के साथ साथ, मेरी पीछे से लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, मत करे अच्छा ठीक है, हाँ यही सही है, यही वाली चल रहा है. ठीक है सही, ठीक है. स्टूडियो लाइटिंग का इंतजाम है लाइव सेशन के लिए है. और अभी रिसेंटली कोविड में आई स्टार्टेड माय वेंचर द स्टेशन डॉट पीके व्हिच इज अ वन स्टॉप शॉपिंग सोल्यूशन. अच्छा पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मेरा नाक जो है ना थोड़ा सा डिफेक्टेड है आज, तो मेरी आवाज थोड़ी सी हो सकती है. नहीं, आपकी आवाज बहुत खूबसूरत आ रही है और पीपल आर ज्वाइनिंग अस, एक के बाद एक हमें ज्वाइन कर रहे हैं सब लोग, और मैं बड़ी खुश हूँ इतनी आवाम देख के और बड़ी एक्साइटेड हूँ. थैंक यू भाई, थैंक यू. So yeah, the station.pk is just a one-stop shopping solution for books, toys, stationery, health supplies, printing services. So like अभी 3 identities के साथ I'm juggling, बल्कि 4-5 कह लें आप, क्योंकि as a woman तो obviously we have in
क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट रोल्स टू एक घर प्ले। वाली जो टेरिटरी है वो तो डिस्कस ही नहीं होती ना, जब कुछ और बिल्कुल आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जी। रहे होते तो हैं। सबसे टॉप पे तो आ जाती है एज अ मदर, फिर वाइफ, सिस्टर, डॉटर, और उसके साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर, एक इन्फ्लुएंसर तो नहीं कहूंगी, बट एज अ स्टोरी टेलर आई कैन से, एंड नो, अ यू आर कम्युनिटी एन लीडर इन्फ्लुएंसर। एट KSG। Okay, So this is so all about me. let me just hop on our topic, which is like कि जो topic नहीं है but मैंने इनको include कर दिया है आज की इस discussion में. You know, girls, there's used to be a time or a season, or I may say a wave in Karachi, like a heat wave, but I usually call it like an admissions wave. जब कराची में हवाओं का रुख बदल जाता है, मौसमों का मिजाज बदल बिल्कुल। जाता है, रिकॉल दैट मोहब्बतें वाला डायलॉग, और जब सोते जागते उठते बैठते पेरेंट्स एक दूसरे से यही सवाल करते हैं ये कि सवाल। मेरे बेटे का एडमिशन कैसे होगा, मेरी बेटी का एडमिशन किस तरह होगा। एंड मैं उस वक्त फिर यही कह पाता हूँ कि if you are live in Karachi, you must have gone through this phase. You बिल्कुल। must have seen parents lined up in the scorching heat of sun, and sometimes early in the morning before Fajr. मैं जा चुकी हूँ, so इसलिए I should like to mention this. And then the form collection, and then the entry test preparation, and the calls of interview, and even after passing through that tiring struggle, parents won't be satisfied by that पांच सितारे वाला review under the website of a school, इंटरनेट। because they genuinely want some other parent who must have gone through this phase, और उनको भी चाहिए होता है वो genuine review किसी और parent से कि जो हमें सच में बताएं कि अंदर के हालात क्या हैं। और एंड देयर KSG comes, their KSG minimizes the या barrier between two parents, and the KSG has bring educationist and the school administration towards one platform, and it was a very useful I think group. I just want to ask my first question to the Beanish, that how did this amazing idea came into your mind कि इस तरह का ग्रुप बना के रख दिया तुमने, कैसे किया? यार, ये इसी तरह का फेज ऑब्वियसली मेरे साथ भी आया था, बट ये तब इतनी ज्यादा जो है प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मतलब फूड रिलेटेड ग्रुप्स, मतलब उस वक्त 6 साल पहले की अगर हम बात करें तो उस वक्त बहुत कम कम्युनिटीज हुआ करती थी। उनमें से एक हमारा जो होता था सॉर्ट होती थी, जिसमें सिर्फ खाना पीना डिस्कस होता था, और एक जिसमें मैं थी, मुझे नहीं पता और भी होंगी, बट आई वाज पार्ट ऑफ टू एक्टिव वंस, एंड वन ऑफ देम वाज शीऑप्स एंड अदर वन वाज सॉर्ट। तो मैं भी इस फेज में आ चुकी थी, मतलब नॉट टिपिकली मैं उस फेज में आई थी, I was about to enter because my child was 2 already and I was looking for school, और मुझे 3-4 मेरे जहन में नाम थे जिनके बारे में मुझे लाइक सर्वे करना था। और बीइंग इंटरनेट जंकी, बीइंग अ सोशल मीडिया जंकी, मुझे ये हुआ कि लोगों से जाके पूछूं क्या, मैं देखती हूँ इंटरनेट पे कोई वेबसाइट है, कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है। एंड व्हेन आई सर्च फॉर इट, तो एक दो वेबसाइट मिली जो बिल्कुल अपडेटेड नहीं थी, कुछ भी नहीं था उन पे, फेसबुक पे तो कोई ग्रुप था ही नहीं। So एग्जैक्टली। there I decided, it was like 1 or 2 a.m. at the night. My husband was not home. I was waiting for him to come back from friends, and there मुझे ये idea आया कि यार इस तरह की कोई चीज नहीं है, let's do it. और बस वो बन गया। थैंक यू सो मच, क्योंकि आई हैव बीन इतना गॉन। spontaneous था बस। अच्छा, लोग मुझे बताते हैं कि वही वाली बात है ना कि एक आइडिया स्पार्क होने में सिर्फ एक मोमेंट लगता है Exactly. आपको, और आई थिंक उससे भी पहले वो फेज आता है जो आपके ऊपर आ चुका होता है। सो देयर यू True. मे फाइंड कि यहाँ पे ये वॉइड या है तो इसको आई फिल होना फाउंड अ चाहिए। प्रॉब्लम, एंड यस उसी वक्त, क्योंकि एक ग्रुप बनाना तो आसान ही होता है, बट ऑब्वियसली फिर उस वक्त मुझे था कि लोग कहते हैं कि डू यू यू नो डिड यू हैव एनी आइडिया कि ये ग्रुप इस हाइट पे जाएगा या इतना आगे जाएगा, आपने तो कभी सोचा ही नहीं होगा। और मेरा जवाब होता है कि मैंने सोचा था। सोचा था। बिल्कुल। दिस उस वुड बी माय मोमेंट में नेक्स्ट मुझे क्वेश्चन व्हाट यू अंदाजा आर था आंसरिंग। कि दिस कम्युनिटी विल गो टू नेक्स्ट लेवल एंड वी विल अचीव समथिंग, एंड माय विजन वाज देयर, माय एग्जीक्यूशन एंड माय हार्ड वर्क वाज देयर, एंड इवेंचुअली अल्लाह ताला की हेल्प आई, एंड वी वर एबल टू मेक अ डिफरेंस एंड इम्पैक्ट। बिकॉज आई मे सी कि ये जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है ना, ये कराची का है मोस्टली। अगर आप क्लियरली देखें यस। ना, तो बिल्कुल। इफ यू लुक अप टू द इस्लामाबाद स्कूल्स, इफ यू गॉन थ्रू के आप देखें लाहौर में, तो ये जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ये सिर्फ कराची में प्रॉब्लम तो नहीं कहना चाहिए, इट्स हाँ। मोर लाइक अ कस्टम। अब एक
रिवाज सा बन यार गया है। इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आवाम है, तो जाहिर सी बात है स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी हमें उस लेवल के मतलब उतने ही ज्यादा चाहिए होते हैं नंबर में। तो और और सब कंपटीशन यही भी कहते बहुत हैं है। लाहौर में इतना स्कूल्स ही नहीं है, इस्लामाबाद में इतना स्कूल्स नहीं है, तो यार इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉपुलेशन, डिमांड, सप्लाई, बहुत एग्जैक्टली। चीजें हैं जो मैटर करती है। Exactly. Okay, Binish, my next question is what difficulties did you find जो अब तक के आपके इस पूरे सफर में आपको लगा हो कि यार ये बहुत मुश्किल हो रहा है, अभी नहीं कंटिन्यू हो पाएगा, या शुरू में बिगिनिंग में एग्जीक्यूशन के वक्त आपको क्या क्या लगा कि यार ये तो बड़ा मुश्किल प्रोसेस है, ग्रुप मेकिंग और उसको हैंडल करना। अच्छा, एग्जीक्यूशन में या शुरू के सालों में तो कुछ इतना खास मुझे स्ट्रगल नहीं हुआ, बिकॉज मेंबर्स का नंबर भी उतना ज्यादा नहीं था। बट राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट 125,000 मेंबर्स एंड इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर मी एटलीस्ट टू हैंडल। तो हमारे पास मतलब अभी जब से स्कूल्स खुले तो मतलब पोस्ट पे पोस्ट आए जा रही है, जब से स्कूल्स खुले। इससे पहले ट्यूटर्स की आती थी। तो बताने का मकसद ये कि उस वक्त इनिशियली तो इतना स्ट्रगल नहीं था, बट अब ये होता है कि पीपल थिंक कम्युनिटी लीडर एज देयर पब्लिक प्रॉपर्टी, के मतलब अगर वो मैसेज कर रहे रात के 1 बजे भी तो मुझे इनको जवाब देना जरूरी है। ये वर्क और होम लाइफ बैलेंस का बहुत मसला आता है। दूसरा ये आता है कि समझाना पड़ता है कि केएसजी इज नॉट अ कंप्लेंट फोरम, नॉट फॉर टीचर्स, नॉट फॉर पेरेंट्स। ये बहुत जरूरी है लोगों, अब अवेयरनेस आ रही है। मतलब पहले लोगों को लगता था कि कुछ भी अगर उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस है, पॉजिटिव तो हम शेयर ही नहीं करेंगे, सही नेगेटिव बात एक्सपीरियंस है तो आपने आके हमारे ग्रुप पे डाल देना है। इट्स लाइक यू नो वॉशिंग। देखिए नेगेटिव एक्सपीरियंस होना गलत बात नहीं है। लोग क्या करते हैं हमारे के नेगेटिव एक्सपीरियंस को इस तरह से बताते मैनिपुलेट हैं कि करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो क्या हो रहा है। इज इट अ सम यू नो पर्सनल ग्रज? वो किसी भी एंड से हो सकता है, वो पेरेंट के एंड से भी हो सकता है, वो टीचर के एंड से भी हो सकता है, वो स्कूल के एंड। एग्जैक्टली। मतलब 3 लोग जो है इस स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं ग्रुप में। तो एग्जैक्टली। ये समझाना एक स्ट्रगल है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का दोनों एंड से मसला आ गया है और कोई कंट्रोवर्सी आ गई, सो पीपल थिंक आई एम द वन हु विल यू नो सॉल्व दिस झगड़ा, झगड़ा। क्योंकि मेरा इनबॉक्स दोनों तरफ से भर जाता है कि हमारे साथ ये हम्म, नाइंसाफी हुई है, वो दूसरी तरफ से आ रहा है कि हमने हम्म, तो ऐसा कुछ नहीं किया। अब मैं हम्म, जिसे कुछ पता ही नहीं है, हु एम आई टू डिसाइड कि क्या हम्म, सही है और क्या गलत है। इवेंचुअली चीजों को संभालने के लिए बैक एंड पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो हम्म। सामने लोगों को नहीं नहीं दिखता। नजर आता है। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है कि यार वी आर नॉट शोइंग ऑफ बट वी डू एक्सपेक्ट फ्रॉम पीपल टू अंडरस्टैंड आवर सिचुएशन। वी हैव अ हम्म, फैमिली लाइफ टू एंड यू नो देयर आर टाइम्स व्हेन वी कांट डिसाइड कि हम किसकी साइड लें। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि क्या सही है क्या गलत है, because you know there can be multiple factors affecting a certain So, situation. you may think कि you may feel the pressure between कि आप दो अलग-अलग एस्पेक्ट्स के लोगों के दरमियान कभी-कभी प्रेशराइज फील करते हो कि जो आपके बिल्कुल स्कूल की तरफ से भी आ रहा होता है और पेरेंट की भी एक अलग लीग है अपनी। बिल्कुल। देखिए मेरा सिर्फ ये कंसर्न होता है अगर पेरेंट की तरफ से क्वेरी आ रही है और स्कूल सोशल मीडिया पे एक्टिव है और सोशल मीडिया फॉलो कर रहा है, तो और अगर कुछ वाकई में गलती हो गई है। देखिए नो स्कूल इज परफेक्ट, नो चाइल्ड इज परफेक्ट, तो परफेक्ट। गलती हो सकती है। अगर आपके लिए कोई ऐसा नेगेटिव एक्सपीरियंस किसी पेरेंट ने बहुत तमीज से लिख दिया है, तो आप उसको एज ए पॉजिटिव क्रिटिसिज्म लें, उस फीडबैक पे वर्कआउट करें, इंस्टेड कि आप मतलब यू लूज योर मार्बल्स। लाइक आप अपना वो क्यों खो देते हैं? डिग्निटी मेंटेन करें और उस कंप्लेन पे वर्क करें। ये मैं समझा समझा के अच्छा, अब उसमें भी स्कूल की दिनेश, how कैटेगरी would you work? How would you handle that situation कि जब वो एकदम से कमेंट थ्रेड में झगड़ा आ जाता है, वो जो एक कंट्रोवर्सी आ जाती है, वो जो एक फस बिखेर जाता है, तो क्या करती हैं आप? टर्न ऑफ कमेंट कर देती हैं या फिर उसको सॉल्व करती हैं पर्सनली जाके? यार पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत ज्यादा जो है ना टेंशन में आ जाती थी कि यार ये मसला आ गया है, अब इसको कैसे सॉल्व करें। बट अब 6 साल हो गए हैं, अब आदत हो गई है ऐसे झगड़ों की, ऐसे कमेंट्स की। बट अगेन केएसजी इज नॉट अ कंप्लेन हब, नॉट फॉर आइदर ऑफ एंटिटी। तो ये संभालना हमारा काम है। डिपेंड करता है कि किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर तो दोनों एंटिटीज या दोनों तरफ से बहुत ही बदतमीजी हो रही है, तो हम लिहाज किए बगैर, अगर हमें लग रहा है कि कोई लिहाज कर ही नहीं रहा, तो हम भी लिहाज नहीं करते एंड वी रिमूव दोज पीपल फ्रॉम आवर ग्रुप। हमें लग रहा है कि यार कुछ चीजें हैं जो एक तरफ से सही समझाई जा है, सकती एक है। फ्रस्ट्रेशन है और वो लेजिट है, मतलब उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, तो हम
मीडिएट करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें लग रहा है कि डिस्कशन हैज टू स्टे देयर, डिलीट करने की कोई वो नहीं है, तो हम उसको जो है कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव क्रिटिसिज्म है तो हम उसको वहां रहने देते हैं, वी टर्न ऑफ द कमेंट्स, या अगर हम पर्सनली भी अप्रोच करते हैं दोनों पार्टीज को एंड ट्राई करते हैं कि कुछ बात बेटर हो जाए। ओके विनेश, योर वन सिंगल क्लिक मैटर्स, ये सही बात है। तो जब आप पोस्ट अप्रूवल्स और डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल्स का जो ये पूरा एक फेज है, इसके बीच में व्हाट काइंड ऑफ पोस्ट बॉदर्स यू द मोस्ट? यार बहुत सारी। एक तो ये जो हमारे लाइव सेशंस होते हैं, एक यार बहुत ज्यादा स्पैमिंग हो रही है, बहुत ज्यादा, लाइक पीपल हु आर यूजिंग सोशल मीडिया फॉर बाइंग स्टफ और सेलिंग स्टफ। अगर फॉर एग्जांपल कोई लाइव सेशन कर रहा है तो उस लाइव सेशन में कॉन्स्टेंटली बोल रहा होता है आप इस वीडियो को 10 ग्रुप में शेयर करें, आपको गिफ्ट मिलेगा। ये कैसे हो रहा है? एक ग्रुप हमारा ग्रुप होता है जरूर यार, when people click on share button, share on group, there's a list of group coming, उसको आप सेलेक्ट करके आप डन कर देते हो, और लोगों को पता भी नहीं होता कि वो किस तरह से जो है दूसरे कम्युनिटीज को का रूल ब्रेक कर रहे हैं, एंड दिस इवेंचुअली इफ दे आर डूइंग इट रिपीटेडली, दिस इवेंचुअली लीड टू देयर रिमूवल फ्रॉम द ग्रुप। यानी लोगों को ये बात समझना चाहिए कि ये एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म होता है और उस पे जो है वो कपड़े नहीं बेचे जा सकते। ऑफ कोर्स ये सही बात है, कपड़े, खाने, लॉन, you name it, and we have a live session for that thing in our pending post. तो वो कौन नायाब आदमी है जो उसको डिक्लाइन करता है? यार असीला मेरी टीम से और मेरी बहन समन, these both are gem of a people who take this load from me and look after this thing, and अब उनको clear instruction है and they know कि भाई अब अगर कोई repeated कर रहा है तो बस अब remove कर दिया जाए, क्योंकि यार देखिए दिन में अगर with over 200 पोस्ट अगर हमारे पास आ रही है और उसमें अगर 50 लाइव सेशन है तो आप सोचिए 150 की जो बारी आते आते ही हम थक जाते हैं, हमारी आंखें थक जाती हैं उनको देख। फिर वो जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होती हैं जो मतलब रियल की क्वेरीज हैं पेरेंट्स की, या फिर वो लोड बढ़ जाता है पेंडिंग पैनल पे, फेसबुक ग्लिचेस आ जाते हैं, स्टक हो जाती हैं चीजें, कुछ ना कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज हमारे एंड पे रहती हैं, तो और लेकिन उसका ये है कि पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, उनको पता ही नहीं होता कि उन्होंने ये किया हुआ है, उनकी गलती हो चुकी है, उनको बस वही वाली चीज है ना। हालांकि दे हैव टू नो कि मैंने कई ऐसे ग्रुप देखे हैं, कराची बाय एंड सेल ग्रुप है और बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जहाँ पे प्रोडक्टिव काम हो रहा है इसी बिजनेस को लेके। और अच्छा एक चीज है विनेश, यू हैव एक्सपोजर टुवर्ड्स स्कूल्स अब तक के, तो मुझे बताओ कि हाउ मच दिस काउंट्स के एक बच्चे की पर्सनालिटी बिल्डिंग में एक गुड स्कूल का सिलेक्शन या फिर एक टॉप रैंकिंग स्कूल में एडमिशन होना, ये कितना मैटर करता है? यार पहली बात तो ये कि मैं रैंकिंग पे नहीं बिलीव रखती, क्योंकि रैंक आप किस बेसिस पे कर रहे हो। अभी आजकल एक स्कूल टॉप पे जा रहा है, उसको अगर जज करने का बेसिस उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या एकेडमिक्स या फैकल्टी, बट हमारे स्टैंडर्ड्स चेंज हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ओके, हर पेरेंट की अलग अलग प्रायोरिटी है। फॉर एग्जाम्पल मेरी प्रायोरिटी ये है कि यार मेरा बच्चा जिस स्कूल में जा रहा है ग्रेड 1 2 ऑनवर्ड, जो प्राइमरी सेकेंडरी, तो वो एक प्रॉपर स्कूल बिल्डिंग हो, प्रॉपर ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स हो, छोटा सा स्कूल ना हो। बट ऑन दी अदर हैंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कंफर्टेबल विद दैट, हो सकता है वो स्कूल जिसके पास बहुत बड़ा ग्राउंड ना हो वो दूसरी फैसिलिटीज ऑफर कर रहा, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी। बिल्कुल। अब अगर कुछ लोगों को होता है कि भाई ऐसा स्कूल हो जहाँ पे फ्लुएंटली इंग्लिश बोली जाए, मतलब उर्दू का एक लफ्ज भी ना हो, मेरे लिए इट्स नॉट अ बेंचमार्क। सो प्रायोरिटीज डिफर फ्रॉम पेरेंट टू पेरेंट, और मैं रैंकिंग में बिल्कुल नहीं रखती। अ गुड स्कूल इज अ स्कूल व्हिच मैचेस योर प्रायोरिटी लिस्ट, एंड सेकेंडली अ गुड स्कूल इज अ स्कूल टू व्हिच योर चाइल्ड गोज हैप्पीली। अगर आपका बच्चा स्कूल जाने के लिए खुश नहीं है तो मतलब देयर इज अ पॉइंट टू पॉन्डर कि कहीं ना कहीं आप में कुछ लैग किया है, कुछ मसला है, कुछ तो है, कुछ तो है खराबी। ओके आपने वो वाले भी उसका मुझे रिप्लाई दे दिया कि व्हाट इज द गुड स्कूल इन योर आईज, बट इसके अलावा भी अगर हम देखें तो गुड स्कूल को अगर हम डिस्कस करें थोड़ा सा और, तो क्या क्या चीजें हैं जो कि एक मदर को देखनी चाहिए स्पेशली? अब आजकल भी तो हम नहीं कह सकते, बट ऑफ कोर्स हर स्कूल का ऑनलाइन सिस्टम भी तो अलग अलग है ना, तो उस वाली चीज में भी हमें, आपको क्या लगता है कि कौन सा जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स अभी इस वक्त जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं उसमें बहुत कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गई।
There were schools who were known for their legacy, इतने सालों से वो जाने जाते थे, अभी भी जाने जाते हैं, अभी भी उन पे वैसा ही रश है, but those schools failed to implement an online system. और ऑनलाइन अच्छा। एजुकेशन इज अ फ्यूचर, आप डिजिटल लर्निंग को साइड में नहीं रख सकते, आपको इवेंचुअली, मैं ये नहीं कह रही कि आप अचानक से उसमें स्मार्ट हो जाए, मैं ये कह रही हूँ कि आप एटलीस्ट काम तो करना शुरू करें. You देयर have आर to स्कूल try. who are known for their name but they haven't started even working on it. उनका बिल्कुल ठप हो चुका है सिस्टम, जिसे कहते हैं ठप, सही बात बिल्कुल है। ठप. और वो यहाँ पे आया सीन कि यार अगर हम आगे से 10 साल बाद देखें, मेरा बच्चा इस वक्त क्लास 3 में है, 10 साल बाद दुनिया और बदलेगी, सही बात है। तो क्या मैं उस बदलती दुनिया के लिए अपने बच्चे को प्रिपेयर कर रही हूँ? Am I working on his critical thinking? Am I working on his creativity? Am I working on his collaborative skills? If I am not doing that, I'm sorry, I'm failing as a mother. क्योंकि ये 3-4 स्किल्स ऐसी हैं जो स्कूल का भी सिखाना बहुत जरूरी है, और एज अ मदर हमें, एज अ पेरेंट हमें भी उस पे काम करना बहुत जरूरी काम करना चाहिए। अच्छा बिनिश, एक और चीज है, इट्स अ कांस्टेंट बैटल ये जो आजकल रन कर रही है, और वो दो अलग अलग तरह की होती हैं। वो एक स्कूल एडमिन की तरफ से है कि जो फॉर एग्जांपल फी रेजिंग इशू है जून जुलाई का, ये तो हमारी पहचान बन चुकी है ना, मतलब कराची का ये मसला लिखा हुआ ही है, ठीक है। एक दो और चीजें हैं कि कोविड के डेज में स्कूल ओपन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि जब गवर्नमेंट की तरफ से आते हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, तो आप लोगों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है कि आप लोग उसको पूरा कंफर्मली उसको कंफर्म करके फिर आप उसको जो है वो अप्रूव करो और फिर आप उसको अनाउंस करो, यार बिकॉज मुझे पीपल आर पर्सनली, लुकिंग टुवर्ड्स योर ग्रुप। बिल्कुल मुझे पर्सनली ऐसा लगता है. अच्छा, मजे की बात ये कि मैंने केएसजी बनाने के बाद अपना बैचलर्स परस्यू किया था, और मैंने किया भी किसमें, मैस कम्युनिकेशन में, जर्नलिज्म, न्यूज एंड ऑल दैट. तो जब इस तरह की चीजें आती हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरी जो है ना पढ़ाई बैलेंस हो रही है, कि मुझे पता है गुड पीआर, न्यूज एंड ऑल दैट स्टफ, टेक्नोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज बीइंग यूज्ड एंड ऑल दैट. यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इस तरह के नोटिसेस गवर्नमेंट कर देती है, बट हमारे पास जीरो अवेयरनेस होती है. प्राइवेट स्कूल्स कहते हैं हम तो इस बात से अग्री नहीं कर रहे, ये इसमें जो लिखा है हम तो अग्री नहीं कर रहे, ये हम पे अप्लाई नहीं करता. देयर इज जीरो अवेयरनेस, और वो सारा जो लोड आता है वो हम पे आता है. जून जुलाई की फी इशू हुआ था, मई जून का, एंड देयर वाज अ बिग नोटिस. तो हमें एजुकेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ एक लाइव सेशन करना पड़ा था, यार दिस इज नाउ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एटलीस्ट टेल पेरेंट्स कि हो क्या रहा है, इसमें एक एक पॉइंट का मतलब किया है. वी ट्राई आवर बेस्ट किस तरह हो जाए, बट कभी कभी हम, हमारे पास भी, अच्छा हमने यही किया है कि हम हर आती हुई न्यूज को अपलोड नहीं कर देते. वी वेट, हमने कुछ अपने वो कहते हैं ना एजेंट्स रखे हुए हैं जो सही सही इन्फॉर्मेशन ला के दें. क्योंकि अक्सर ये होता है कि अभी फॉर एग्जांपल सईद गनी का बयान चल रहा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. रिसेंटली ऐसा हुआ था कि बयान चल रहा है और जो है लोगों ने उसके न्यूज के जो स्नैपशॉट्स होते हैं वो डालना शुरू कर दिए, और पेंडिंग में हमारे पास एक के बाद एक ना बारिश शुरू हो जाती है लिटरली. तो वो बारिश शुरू हो गई, हम लाइक आवर टीम वाज इन ऑन स्टैंड बाय. हमें कहाँ कह दिया जाता है बी ऑन स्टैंड बाय, न्यूज आने वाली है, लिटरली ये वर्ड्स होते हैं हमारे 2-3 लोगों के जो रियली एक्साइटिंग ना, वैसे सुन के मजा आ रहा है आप लोगों की तरफ. बहुत एक्साइटिंग, सुनने में एक्साइटिंग है ये. नहीं यार, मतलब अच्छा है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से भी चीजों को सुन रहे हैं. फिर प्रेशर, ऑफ कोर्स प्रेशर भी होता होगा, बट तो अब प्रेशर ये होता है कि फॉर एग्जांपल कोई आ गई न्यूज, तो अब फिर चलो न्यूज तो शेयर कर दी, बट उसके बाद एक डिस्कशन होता है, लोग अग्री करते हैं, लोग डिसएग्री करते हैं, और वो एक हो सकता है वो कोई जंग की तरफ, मुझे ऐसा लगता है वो डिजिटल जंग ना हो जाए कमेंट्स में. अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन अभी रेज हुआ है. जैसे कि हमने बात की, कोविड आया है तो स्कूल्स का भी सिनेरियो चेंज हो गया, पीपल हैव स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स ऑनलाइन. मगर एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि अब नई उभर के आई है, जो कि होम स्कूलिंग है. तो आई हैव सदफ अकबर, बहुत सारे अदर लोग हैं जिनके नाम मुझे नजर आ रहे हैं, जिनके कमेंट्स नजर आ रहे हैं, और आप लोग मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड स्कूल जो आप लोगों के लिए. सॉरी मैं उधर इसलिए बोल रही हूँ, उधर मेरा मोबाइल रखा है. तो एक जो क्वेश्चन है वो ये है कि डू यू थिंक पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट होम स्कूलिंग? Yes, people actually have. People actually have. जो मैंने नोटिस किया वो यही किया. अगर मैं पर्सनली अपने ग्रुप के ट्रेंड की बात करूं,
तो हमारे पास एडमिशन अभी तो स्टार्ट हो गया है पिछले 1-1.5 हफ्ते से, बट इससे पहले काफी लोग, हमारा पूरा ट्रेंड ही चेंज हो गया था। जहां लोग स्कूल्स के बारे में पूछते थे, वहां लोग पूछते थे मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स के बारे में बता दे, होम ट्यूटर के बारे में बता दे, वी नीड असिस्टेंस इन होम स्कूलिंग। हमने होम स्कूलिंग के बारे में कुछ पोस्ट भी असीला ने ग्रुप पे की थी, टू क्रिएट बेसिक अवेयरनेस। होम स्कूलिंग होता क्या है, कितना डिसिप्लिन रिक्वायर्ड होता है। होम स्कूलिंग इज नॉट जस्ट कि आपने किसी ट्यूटर को बुला के जो है ना बच्चे को बिठा दिया, दैट्स नॉट होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग बहुत वाइड जो है आपका फील्ड कह सकते हैं, या अब न्यू कैटेगरी, न्यू नहीं है, पीपल स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट। आई पर्सनली न्यू मेनी लेडीज हु आर डूइंग होम स्कूलिंग, बट नाउ इट्स टेकिंग, यस इट्स नाउ टेकिंग अ ट्रेंड। बट वही बात है कि हमारा मसला ये है, नो ऑफेंस, हमारा मसला ये है कि जब कोई नई चीज हमें पता चलती है तो हमें इंटरेस्ट बड़ा होता है, बट थोड़े टाइम बाद वो झाग बैठ जाता है, क्योंकि होम स्कूलिंग जैसी चीज में बहुत डिसिप्लिन रिक्वायर होता है, बहुत ज्यादा। आप आई थिंक इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी चेंज करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा जो है चीजों, और ये ऐसी नहीं है भाई कि सिंपल आपने जो है कुछ बुक्स लाके कर दी। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च फ्रॉम पेरेंट्स एंड, और अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट, व्हाई नॉट, यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। अच्छा, समटाइम्स यू मे फील कि आपका ग्रुप ऑफ कोर्स एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, बट क्या होता है कि आपको लगता है कि किस किस्म की पोस्ट के ऊपर पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ज्यादा पुट ऑन कर रहे होते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये ठीक नहीं है, इसमें तो क्या बात होनी चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले समन ने एक स्क्रीनशॉट भेजा मेरे हमारे टीम के व्हाट्सएप पे कि ये पोस्ट अप्रूव हो चुकी है, इस पे बहुत ज्यादा कमेंट्स आएंगे, सो एवरीवन प्लीज कीप एन आई। अब वो क्या थी, वो एक कंट्रोवर्शियल पोस्ट थी, एक एनोनिमस थी, और उसमें किसी ने अपना कंसर्न रेज किया हुआ था। इट वाज अ फुल कंट्रोवर्सी एंड पीपल वर लाइक हमें तो दूसरी साइड ऑफ द स्टोरी पता ही नहीं है, तो हम कैसे मान लें। तो बस एक तो ऐसी पोस्ट होती है, फिर आपको जोक दिलवा दें। खैर, आई ऑल्सो शेयर, वी ऑल्सो शेयर पेरेंटिंग ह्यूमर, एंड लोगों को अच्छा लगता है। और अगर आपको मेरा स्टाइल देख ग्रुप पे कम्युनिकेशन का, तो मेरा ऐसा ही है कि यार अभी नहीं, वो क्वेश्चन अलग से आएगा, वो क्वेश्चन अब आप मेरे किसी क्वेश्चन का जवाब आया, आप दूसरे सवाल पे आए, मैं रेडी हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, फिर उसके बाद एंड में इस वाली चीज की तरफ जाएंगे। रिसेंटली यू हैव कोलैबोरेटेड विद सम टीम के आप दोनों ने मिलके यू हैव प्रेजेंटेड अ वीडियो टुवर्ड्स गुड टच एंड बैड टच। So I just want to ask Vinesh that this is a very bold step from you guys, and this is very important step. But तुम्हें क्या लगता है विनेश के क्या लोग इसको एज अ अवेयरनेस के तौर पे अभी ले रहे हैं, या आज भी वो इसको टैबू समझ के जो है वो इस पे बात नहीं करना चाहते, एंड दे डोंट वांट टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट इट? तुम्हें क्या लगता है? यार, अगर मैं लॉजिकली जो मेरी सोशल लिसनिंग है उस हिसाब से बात करूं तो यस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है। हमने भी इसीलिए अवेयरनेस की कि हमारे पास एक ऐसी चीज आई, मेरे पास KSG पे एक ऐसी पोस्ट आई जिसपे मुझे लगा कि यार थोड़ा सा हम कुछ इस बारे में कर सकते हैं। बट मुझे डिसअपॉइंटमेंट जब हुई, जब मुझे वैसा रिस्पॉन्स उस वीडियो पे नहीं मिला जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों हुआ। आइदर पीपल डू नॉट वांट टू सी दैट, और पीपल आर ऑलरेडी मतलब टू एफिशिएंट अबाउट इट, लोगों को पता है। मुझे ऑनेस्टली इस बारे में ज्यादा मैं कुछ कहने से इसलिए वो कर रही हूँ कि मुझे खुद भी मैं एनालाइज नहीं कर पाई, बट टैबू नहीं रहा। जब कभी इस तरह की को पोस्ट आती हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप ही के उस पे कोई इस तरह की पोस्ट रेस करता है, एनॉनिमसली बात होती है कि भाई किसी वैन ड्राइवर की तरफ से कोई मिसबिहेव हुआ है, किसी और की तरफ से कोई मिसबिहेव हुआ है, तो देन पीपल विल स्टार्टेड कमेंटिंग लाइक कि वो डिस्कशन कर रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि हमें बताएं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए, क्यूरियोसिटी, मतलब लोगों को बस इस तरह का चाहिए। there is a huge chunk of people who is there to support our initiative. I won't lie, there were so many schools, so many influences, even you shared it on your ग्रुप। तो वो सपोर्ट बहुत मैटर करता है ऐसी चीजों के लिए। उसमें मतलब हमें कोई फायदा नहीं था, हमारी कोई एडवर्टाइजिंग नहीं थी, इनफैक्ट एक कॉस्ट गई थी उस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए भी। तो मुझे यही हुआ कि यार क्या हुआ, ये समझ नहीं आया मुझे। लाइक वी ऑल आर लेडीज हियर वाचिंग,
इस वक्त जो भी देख रहे हैं, तो हम एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मेरी इतनी बड़ी I also कम्युनिटी may है तो feel मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि कुछ व्यूज तो क्रॉस करेंगे। लेकिन लोग अभी आई थिंक इतने अवेयर नहीं क्या हुए हुआ? हैं। आई थिंक लोगों को टाइम लगेगा इस चीज की तरफ जाते जाते। थैंकफुली बट वी कैन थैंकफुली होप। जो भी रिस्पॉन्स आया वो अच्छा आया। थैंकफुली जो भी रिस्पॉन्स आया वो अच्छा आया। कहीं ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमें बैकलैश किया कि आपने क्यों इतनी बोल्ड बातें कर ली या ये वो, क्योंकि एक वीडियो थी कुछ मिनट्स की थी, बहुत उसमें हमने चीजें सेलेक्ट कर करके डाली कि बहुत लंबी ना हो जाए, प्रिसाइज रहे, बच्चों का टेंशन स्पैन रहे। तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई बैकलैश आ गया या लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया इस चीज के लिए। पीपल नहीं अप्रिशिएटेड, जिन्होंने क्रिटिसाइज देखा नहीं उन्होंने किया। अप्रिशिएट किया। अच्छा, एक चीज जो कि आई ऑलवेज वांटेड टू आस्क फ्रॉम बीनिश, आई ऑलवेज फाइंड योर पोस्ट ह्यूमरस और थोड़ी फ्रैंक किस्म की होती हैं। और ऑल्दो कि ये एक एजुकेशनल काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म है, बट क्योंकि यू आर टॉकिंग लाइक दिस तो बड़ा एक ना लाइट माहौल बन जाता है। और मुझे याद है कि मैंने बिल्कुल। फर्स्ट टाइम व्हेन आई जॉइन केएसजी, तो उस वक्त आई थिंक किसी और ने आपके ग्रुप जैसा ही एक ग्रुप बिल्डअप किया था, तो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा कि योर से वाज लाइक कि हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। और ब्रांच मुझे नहीं है बहुत मजा हमारी। आया कि इससे क्या हुआ कि आपने अपनी बात भी कह दी और सामने वाले को बुरा भी नहीं बिल्कुल लगा। तो आई थिंक आई बिल्कुल। वुड रियली अप्रिशिएट योर दिस काइंड ऑफ स्टाइल यू मे से, कि जो कि बहुत ही लाइट होता है, फ्रैंक होता है और अच्छा होता है, और पीपल वुड एंजॉय इट। बिल्कुल कैसे यार ये हाउ डिड यू गेट द करेज ये टू टॉक? ये मुझे मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि ये जो मेरा राइटिंग स्टाइल है ये बाय टाइम इवॉल्व हुआ है। मतलब मैं अपना वो गुड राइटर तो नहीं कहूंगी, बट आई ऑलवेज यूज टू नो स्क्रिबल ऑन माय डायरीज, और मुझे शेर लिखने का भी बड़ा शौक था, और जोक्स भी पढ़ने, डाइजेस्ट हो या अखबार जहाँ हो, मुझे जोक्स पढ़ने का बहुत शौक था, जोक्स की किताबें भी ली है मैंने। तो देयर वाज मुझे खुद आई डिडंट नो अबाउट माय दिस साइड, ये बाय टाइम मैंने एक्नॉलेज किया है या इवॉल्व हुआ है आई कैन से। जहां तक बात आती है एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे स्टाइल को लेके चलना, सो यस इट डज रिक्वायर अ करेज एट टाइम्स, बिकॉज हमें बहुत ज्यादा फॉर्मल लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। फॉर्मल अब एक दो दफा सुनने को भी मिली है कि इट डजंट सूट्स योर प्लेटफॉर्म। आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई इट डजंट सूट्स, क्योंकि वहां हम, अगर मैं केएसजी को फैमिली कह रही हूँ, तो आई थिंक आई कैन एड्रेस माई ऑडियंस हु कनेक्ट विद मी, who actually look up to me। मैं उन लोगों से नहीं बात कर रही जो सिर्फ देख के आगे बढ़ जाते, मैं उन लोगों सही से बात। बात कर रही हूँ जो देख के आगे फीडबैक देते हैं, और उनको या अगर मेरा स्टाइल पसंद है तो नहीं, व्हाई नॉट, एडमिन शुड कैची आल्सो ना। एडमिन की तरफ से कोई चीज आ बिल्कुल रही है तो ऐसा होना चाहिए कि पीपल वुड लव टू, मतलब वो बात करना चाहें उसके ऊपर, और एग्जैक्टली। वो उसके ऊपर थोड़ा बहुत मैं जो है वो ज्यादा फॉर्मल डिस्कशन। बातें करती हूँ, कोई पढ़ता ही नहीं है। बस तो फिर तुम हमेशा बात ही ना ऐसे ही किया करोगे लोग, और बाकी पता हाँ नहीं ऐसे ही करती हूँ मैं। आप समझेंगे कि जो फॉर्मल वाला स्टाइल होता है, मुझे ऐसे लगता है हाँ कुछ लीग ऐसी है कि जो उस तरफ चली जाती है, बट क्योंकि हाँ आपको दोनों तरफ के ऑडियंस को केटर करना होता है ना, तो यू हैव टू बी बिल्कुल। बायलिंगुअल। अच्छा, एक लास्ट चीज वो ये कि कोई सजेशन टुवर्ड्स बिगिनर्स के जो जिनको लगता हो कि आई थिंक ग्रुप मेकिंग समथिंग, who wants to be a community leader, या फिर वो पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, तो एक suggestions before I'm moving towards our rapid fire round. यार ये मतलब तुमने इतनी सबको क्या एक मैसेज दूं बट ये कि तुम मैं सिंपल एक ये मैसेज देना चाहूंगी कि सब तुम्हारे ग्रुप पे इट्स अ लेडीज ओनली ग्रुप, एंड आई एम श्योर कि देख रही होंगी जो भी लेडीज हमें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो डू नॉट गो फॉर एक्सक्यूजेस के टाइम नहीं मिलता, बच्चे हैं तो, जॉइंट फैमिली है तो, वी कांट मैनेज, फिर क्योंकि अगर आप अभी वक्त नहीं निकालेंगी अपनी स्किल सेट को पॉलिश करने के लिए, जो आप करना चाहती, इवन इफ इट्स अ स्मॉल स्केल, इवन इफ इट्स अबाउट मेकिंग अ स्मॉल कैनवस पेंटिंग, अगर आपको आपकी हॉबी है तो टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ। जस्ट डू नॉट ओवर बर्डन विद योर सेल्फ विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है अपने फराइज अंजाम दें, बट अपने लिए भी टाइम निकालें, क्योंकि अगर अभी नहीं निकालेंगे तो कुछ साल बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे और आपके हाथ में बहुत टाइम आ जाएगा, फिर आप सोचेंगे कि यार कुछ मैंने ये स्टार्ट कर लिया कर होता या लिया मैंने उसको पॉलिश कर लिया होता। कर नेवर टू लेट, लिया। Okay. नेवर टू लेट टू Yeah, लर्न, नेवर suddenly टू लर्न टू a मेक very एक्सपीरियंस।
आई अप्रिशिएट यू विनेश कि तुमने बड़ा अच्छा मेरे ग्रुप के थ्रू तुमने मैसेज दिया, बिकॉज मोस्टली वुमेन्स आर देयर कि जो हमें सुन रही हैं, सो दे मे गेट बिल्कुल करेज, उनको भी लगेगा कि मुझे कुछ करना चाहिए, मेरे अंदर जो स्पार्क है। एंड जो हमारे बिल्कुल। जो ग्रुप और मेरे होता है ग्रुप में भाई, जो सब बेसिक, में होता है, सब हाँ, में होता है, सब में कुछ ना कुछ होता है। अलग होता है कि जो हम एक दूसरे से डिफर करता है जो चीज, यही चीज मैं कहती बिल्कुल हूँ। और मेरे ग्रुप का फोटो यही है, मैंने जो ये चीज बना के रखी है। लोग कहते हैं कि हर बार एक नई किस्म की एक अलग उससे उठा के ले आती है। लोग मुझे कहते हैं कि अभी तो आप इस पे बात कर रही थी, अब एक बिल्कुल अलग। तो मैं कहती हूँ सो क्योंकि हमें व्हाट। अलग अलग तरह की खवातीन से मिलना पड़ेगा, बिल्कुल हमें इंस्पिरेशनल बिल्कुल। अगर होना है तो हमें जानना पड़ेगा उनके शू में जाके कि कितना एग्जैक्टली मुश्किल था उन लोगों के लिए ये एग्जैक्टली। भी करना। एक क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त मेरे जहन में अभी अभी आया, वो ये कि ड्यूरिंग दिस टेन्योर ऑफ आपका ये जो अभी पूरा लीडरशिप है और जो आपका कम्युनिटी मेकिंग है, कौन सी एक चीज है कि जो तुमने गेन की है तुम्हारी ग्रोथ के लिए, और कौन सी एक चीज है जो कि तुमने लूज कर दी? यार अगर मैं सिर्फ लूज, तो मैं कहूंगी मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गेन मैंने बहुत कुछ किया। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह कैमरे पे बात कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था मैं माइक पे बात कर सकती हूँ। मुझे नहीं पता था आई कैन एड्रेस टू अ ह्यूज ऑडियंस ऑफ फुल ऑफ एजुकेशनिस्ट एंड टीचर्स। मतलब मैंने कभी रियली? सोचा भी नहीं। रियली मैं हमेशा समझती हूँ तुम पैदा ही कॉन्फिडेंट हुई थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपने स्कूल में कभी जाके माइक पे बात तक नहीं की, कभी भी नहीं की। कॉलेज में एक बार की थी, और उसमें जो है ना मुझे फीडबैक मिला था इधर उधर से कि कौन सी ट्रेन भगाई है इन्होंने। वो 5 मिनट की असेंबली मैंने होस्ट की थी। यूनिवर्सिटी में मेरा कोई खास एक्सपोजर नहीं रहा, तो आई नेवर एवर, आई ऑलवेज हैड दिस स्टेज फ्राइट। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि मैं लिख भी सकती हूँ इतना सब कुछ। और सबसे बड़ी बात कि मैंने अपना बैचलर्स ही जो है ना पीएचडी बनाने के बाद किया था। बात वन किया। ऑफ द मेंबर राबिया सैयद, शी फोर्स्ड मी, तुम कर सकती हो। मैंने कहा यार मेरे टाइप का कुछ है नहीं, मुझे ये बीकॉम नहीं समझ आता क्योंकि उसमें बहुत कॉमर्स है। मुझे प्री वो क्या कहते हैं अपना दूसरे सब्जेक्ट्स भी नहीं समझ आते, मैं नहीं कर मुश्किल सकती। और यूनिवर्सिटी जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था शादी के बाद ऑब्वियसली। तो हम्म। उन्होंने कहा तुम ये जो है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करो, तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। एंड आई वेंट ऑन दैट साइट, जो वीयू का प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट है, एंड वहां पे मैंने काफी डिग्री सर्च की। और वहां पे मुझे जो है मास कम्युनिकेशन नजर आया, एंड आई वाज लाइक, मैंने उसकी कोर्स आउटलाइन पढ़ी। ये हम्म। ये मेरे टाइप का है, ये मैं कर सकती ये कर हूँ। सकते तो हैं। और अगर लॉस की बात करें तो मैं क्या मैंने सोचती हूँ मैं इस बारे में, कोई नहीं नहीं, ऐसा लॉस लॉस। नहीं हुआ। सच लॉस हुआ, बट यस ये है कि कभी कभी ओवरवर्कड होने की वजह से मेरी हेल्थ जरूर खराब होती है। मेरा स्क्रीन टाइम की वजह से मुझे, आई डोंट नो व्हाट डू वी कॉल, वर्टिगो, उसका अटैक हो चुका है पिछले महीने। माय हेड वाज, हाँ जी बिल्कुल, वर्टिगो या। सो दैट हैपेंड टू मी, माय हेड वाज स्पिनिंग, और मुझे डॉक्टर ने कहा कि भाई थोड़ा सा हल्के हाथ कर लो। स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था। बहुत तो बढ़िया। यस, मेरी आईज आर माय लॉस हियर, एंड यू कैन सी ओके, द डार्क सर्कल्स। हम दोनों ने ये सेशन करना था, बट मुझे बीनेश का ये वाला साइड नहीं पता था, जो विच यू शेयर योर स्टोरी ऑफ योर कॉन्फिडेंस रेजिंग। वरना मैं सोच रही थी कि मैं सिर्फ अपनी ही स्टोरी लेके बीनेश को रेफर करूंगी हमेशा, और मैं याद करूंगी कि कैसे व्हेन यू हैव टोल्ड मी कि नहीं, तुम एक वन लाइनर वीडियो बना के मुझे दे दो, तो मैंने कहा ये इसने कैसे ये बात मेरे लिए की, मैं तो हाउस वाइफ हूँ, मैं तो घर में अपने बच्चों को देखती हूँ। बट बिलीव मी बीनेश, जैसे कि तुमने अभी बताया, हम सबकी कहानियां ना कहीं कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकराती हैं, कहीं ना कहीं। ट्रू। तो अब जैसे कि तुमने कहा, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये सब तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, बट मैं हमेशा रेफर करूंगी कि व्हेन यू हैव सैड मी एंड यू हैव ऑफर मी कि तुम ये चीज करो, और फिर बस वहां से ही जो है ना, ये हमने ये बिखेड़ा और झमेला, और जो लोग मुझे बर्दाश्त करते हैं, अगर 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 तो करते हैं, That खुशी one खुशी। liner video led to this my little bubble, right? एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। तो ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। कुछ लोगों में ना Thanks, एक yeah, ऐसी it पावर means a होती है lot. विच इज इन यू। मैंने हमेशा देखा है कि ये एक अजीब सी चीज है आपके अंदर, और मैं जिसकी वजह से ये एक पॉजिटिविटी है जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी से निकलती है, कि जो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो दिल का बड़ा होता है ना, वो ये चीज सामने वाले के अंदर भी देख सकता है कि Yeah, ये इसका तो बहुत ज्यादा you are being too kind with your बस तुम चेक compliments, भिजवा but it's देना, all चेक भिजवा देना, चेक भिजवाऊं मैं तुम्हें, सब कह ठीक दिया है। है मैंने, ठीक है। ठीक है ठीक है। ओके, सो रिमशा, जो लेट्स लाइन और टॉक। बताई थी वो भी बोलो।
ओ कहाँ गई वो वाली लाइन, कुछ गड़बड़ हो गई। You अच्छा जी, missed some lines. बीनिश की मेहरबानियां कि मैं आज हूँ राहत जुनैद। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ पीपल के जो है वो अपना, राहत को भी कैमरे पे ले लेते हैं, हम एक काम मैं करते यही हैं कह रही थी कि someday. राहत बहुत काम कर रही है, और नेक्स्ट ये आएंगी गुड साइड ऑफ लाइफ की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त. ओके, सो बीनिश गेट रेडी फॉर अ रैपिड फायर राउंड। ओके, 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। ओ चना माय गॉड. चाट या गोलगप्पे? गोलगप्पे. उसका पानी. ओह, टीवी ड्रामास या मूवीज? टीवी ड्रामा. टीवी ड्रामा। लेकिन वो चाय या साल 6 महीने का एक. 6 महीने वाला एक? 6 महीने में एक देखती हूँ बस. अभी रिसेंटली आई डिड घिसी पिटी मोहब्बत, वो भी एक अलिफ के बाद. या घिसी पिटी मोहब्बत वाज क्लास। Yeah. ओके, चाय या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक से मुझे एलर्जी है, तो चाय. चाय। और चाय का क्या एडिक्शन है, या बस ऐसे ही थोड़ा नहीं बहुत? नहीं, इन जस्ट 1 कप अ डे, दैट नाश्ते में बस. ओके, तो सारे सारे मैं ही सारा कर लेती हूँ मुझे लगता है। खैर, मेकअप और विदाउट मेकअप? यार मेकअप करना अब मजबूरी हो गई है, लेकिन ये पिंपल्स जो है ना यहाँ पे, सारे दैट सारे वर्गोज एक जैसे होते हैं। मेरी भी लाइफ आई. में मेकअप का अहमियत बस इतनी सी है, कुछ थोड़ी बहुत है कि यार मेरा मैं काम। मैं मैं जब मैं यकीन करो रिंशा, आई वोंट लाई, मैंने 2 हफ्ते पहले नाहिद पे मेकअप की सेल लगी थी एंड मैंने बहुत सारा मेकअप ऑर्डर किया, क्योंकि ऑब्वियसली इवेंट्स वगैरह में जाना होता है, डीएसएलआर फोटोग्राफी होती है, तो अपना मुंह थोड़ा ज्यादा पॉलिश करना पड़ता है. तो एंड आई हैड टू गो इन अ वेडिंग लास्ट वीक, तो मैं एक्साइटेड थी ना कि यार मेरे पास इतना अच्छा मेकअप आ गया, क्या धांसू मेकअप करूंगी ना मैं. लिटरली आई सक्ड एट इट. मैंने कहा भाई नहीं, माफ करो, मुझे नहीं आता वो मेकअप. मुश्किल होता है ना बहुत। बिल्कुल. तो इट्स नॉट अबाउट गुड मेकअप और गुड मेकअप टूल्स, इट्स ऑल राइट, अबाउट, क्योंकि मैं थकी हुई थी. अच्छा, दैट्स द रियलिटी. मैं बहुत राइट। थकी हुई थी, मैं एग्जॉस्टेड थी, मेरा पूरा मुंह, मेरा ये मसला है कि मैं ज्यादा थकी हुई होती हूँ, मेरा फेस स्वेल हो जाता है. आ जाता तो वो है। पूरी स्वेलिंग मुंह पे आ रही थी एंड मैंने कहा कुछ कोई मेकअप आपको अच्छा नहीं दिखा सकता जब तक आप खुद जो है ना फ्रेश रिफ्रेश ना हो. एग्जैक्टली। अच्छा बीनिश, एक ये वाली चीज मैं भी यहाँ पे जल्दी से क्विकली शेयर करूं, हालांकि ये तुम्हारा रैपिड फायर है कि मैं कोई दिन में तो नहीं, बट रात में जब होता है तो मैं कोई 4 5 लाइव सेशंस देखती हूँ। मुझे सब पता है कौन सी चीज पहले लगनी है, कौन सी चीज बाद में, बट हाँ. यकीन करो आई एम अ लेजी काउ, मुझे वो कुछ भी नहीं अप्लाई करना कुछ होता नहीं अपने आता. मुंह में। रिमशा भी खैर, बताओ ना, तुमने मुझसे लाइव सेशन से पहले क्या करवाया, ये भी बताओ तुम सबको हाँ, जरा. नहीं नहीं ना, ये वाली बातें नहीं करा देना। मैंने मेकअप करवाया बाल तो बीनिश से। बनवाए तुमने, बाल तो बाल बनवाए मेरे. बनवाए, मेकअप करवाया सोच बीनिश ले से, सब क्या सोचा। हाल होगा मेरा. एग्जैक्टली अच्छा, आलू इन बिरयानी या बिरयानी विदाउट आलू? आलू भाई, क्या आलू. मजाक है क्या, मतलब क्या विदाउट में? मजाक है, कौन सी अच्छा, बिरयानी है. अच्छा। ठंडी सख्त ठंड में कॉफी या फिर बारिश में पकोड़े? कॉफी. क्योंकि कॉफी। बारिश तो अच्छी लगती है, पकोड़े भी अच्छे लगते हैं, बट ये बारिश के बाद का मेस जो हमारे यहाँ होता है वो नो. और मैं एग्जैक्टली। पर्सनली बहुत ज्यादा मुझे स्वेटिंग होती है, जिससे मेरा जो है ना पारा नेक्स्ट लेवल चला जाता है, तो इट्स बेटर कि मुझे मेरे यहाँ पे सर्दी ही हो. जबरदस्त। अच्छा, बीचेस या फिर माउंटेन्स? ये सवाल तो मैं बहुत सारे लोगों से पूछती हूँ। बीचेस. बीचेस। हम्म. कराची का बीच या फिर आपने कुछ और भी एक्सप्लोर किया हुआ है? मैं कराची के बीच पे ही गई हूँ अभी तक तो. और पता है कराची के बीच में एक ऐसी बात है ना कि आप किसी और को इस बीच ला नहीं सकते। ये जो हम लोग का कराची के बीच से सीव्यू कनेक्शन है ना, सीव्यू पर्सनली मैं इतना नहीं ये जाती. समथिंग है। सीव्यू नहीं, हॉक्स बे तक उसका अलग वो है, मुझे सीव्यू को इतना कोई खास नहीं पसंद, वो नहीं, बहुत मुझे वो दूर है. जगह बहुत अच्छी लगती है कराची में, जहाँ जोर जोर से पानी आता है। आई थिंक, पता नहीं क्या है वो, कुछ दो दो दरिया दरिया. है। हाँ. हाँ, हाँ, अच्छा दैट्स अ लगता है। ब्यूटीफुल प्लेस. आई एम अ ओल्ड स्कूल गर्ल, मुझे बहुत मजा आता है वहां जाके। खैर, चूज वन सिटी वेयर यू वांट टू लिव या फिर मूव ऑन, अमंग कराची, लाहौर और इस्लामाबाद? कराची. नोवेयर एल्स. ओके, लाइव सेशंस या फिर पोस्ट अप्रूवल्स? पोस्ट अप्रूवल्स आर बेटर. लाइव सेशंस नहीं नहीं. बट यू आर अंटिल के बहुत वंडरफुल, ज्यादा मैंने देखा है। अनसेंसर्ड चीजें हो रही हैं जो अभी हो रही हैं, मैं बहुत ज्यादा मुझे फॉर्मल बात करने से डर लग रहा होता है कि कुछ ऐसा वैसा निकल आया मुंह से तो लोग तो पकड़ लेंगे कि इन्होंने ऐसी सही बात कर बात है, दी जिंदगी है. खराब कर देंगे फिर। अच्छा, केएसजी या देसी मॉम ब्लॉगर? केएसजी. केएसजी। ओके, व्हेन कोविड गेट्स ओवर व्हिच वन डेस्टिनेशन यू वुड वांट टू गो? कौन सी जगह? यार आई वुड लव टू गो बैक फॉर उम्रा. जैसे कोविड से पहले मैंने उम्रा किया, मैं वापस, आई एम सो
मैं अभी देख रही थी किसी की पिक्चर, हु इज सऊदिया में उनकी नेशनैलिटी है, तो उन्होंने अपनी मदीना की पिक्चर लगाई थी अभी। आई वाज लाइक वाओ, सो लकी। और मैं और तुम एक सेम मोमेंट पे वहां गए, बट हम मिल नहीं पाए। हाँ, ये भी एक बिकॉज वी डिडंट फैमिली। नो ईच अदर, यस। माशाल्लाह। आई पर्सनली खुद भी, मैं बस समझ में नहीं आता कब दोबारा से जो है कब वही सी वापस एक जाए। चीज आ जाए। अब नहीं आएगी वैसी आफ्टर कोविड, बट वी होप, वी कैन होप। हाँ अच्छा, बिल्कुल। एक अब वो क्वेश्चन आने वाला है जो बहुत ही मजे का है। इफ यू विल स्टक इन द लिफ्ट with these kind of persons, how would you react, what would you say to them? Okay, मैं वैसे आपको एक आपस की लिस्ट, बात है, मुझे बहुत अजीब अजीब से ख्वाब आते हैं कि मैं लिफ्ट में स्टक हो गई हूँ एंड ये वो। तुम्हें कैसे पता यानी चला? कि मैं कुछ तो सही तुम्हें नहीं सवाल बता करूँ मैं आपसे। रही। अच्छा, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिफ्ट में स्टक हो जाएं इस लिस्ट ऑफ पीपल के साथ जिसमें पहला नंबर है इमरान खान, तो आप क्या कहेंगे उनसे? आपने घबराना नहीं है। घबराना, मैं भी नहीं घबरा रही। इट्स आप भी ओके। नहीं घबराए। बिल्कुल। ओके, सो And बिकॉज yes, बिकॉज I will definitely take this opportunity to introduce my work to him and offer some plans which we have, and we can, execute it on top level. इन रिगार्डिंग एजुकेशन सेक्टर, Yes, बिल्कुल। यानी तुम काम की बात कर दोगी ना अपनी उनके काम साथ? की बात, बगैर किसी लिहाज के। लिहाज से। अच्छा, दूसरा है मलाला यूसुफजई, बिकॉज ऑफ द एजुकेशन सेक्टर में मुझे और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मलाला यूसुफजई। Yeah, I will just say that keep going, girl. You are reaching new heights, and you will definitely receive backlash from people. But don't give. Obviously, she's not doing that. But थोड़ा सा और उनको कह दूंगी कि आपने भी घबराना नहीं है और लोगों की बातों घबराना को नहीं है, इग्नोर उनको करना भी है। यही वाला मैसेज होना चाहिए। ओके, मार्क जकरबर्ग, जिनकी वजह से हम सबका कारोबार Oh चल my रहा है। God! Thank कितनी बड़ी you, लिस्ट है। thank you. थैंक यू स्पीच। थैंक गुड यू गुड। फॉर एग्जैक्टली, लाइक ऑब्वियसली वो ऑब्वियसली उसको मेरे थैंक यू की जरूरत नहीं है, बट यस, फेसबुक हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लाइफ। आई विल नहीं, डेफिनेटली, आई थिंक एवरी पर्सन and वांट Facebook दैट is फीलिंग। actually working a lot on community, जो हमारी सबकी communities है। इनफैक्ट हमारी community तो recognize भी हुई थी 2-3 साल पहले। तो I will definitely thank him for giving us this, title of community leader. Community leader पहले कोई use नहीं करता था हमारे लिए. This is Facebook who introduced this term, 2 years back for us admins. वरना हम admin या हमारा मजाक ही उड़ाया जाता था. At least now we have, decent term to use for us कि we are community leaders. कम्युनिटी लीडर्स, माशाल्लाह, जबरदस्त। और फोर्थ वन जो आजकल बड़ा है, ताहिर शाह, उनके साथ स्टक Oh, हुई तो क्या होगा? oh no. लिफ्ट फाड़ के how निकल जाओगी how कि उनके भी how do साथ? you, I will just ask him, how do you do that? मतलब हमसे तो कैमरा कॉन्फिडेंस। पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, आप इतना सब कुछ कैसे कर रहे हैं? और अगर Just फोर्थ let वन है, those, हाँ बस बोलो, अच्छा, फोर्थ कौन ये है? ये गट्स भी जो है वो कुछ ही लोगों के पास है, मैं बता रही हूँ। ये बहुत बिल्कुल, कॉन्फिडेंस रिक्वायर होता है, आसान नहीं है एग्जैक्टली। अपने आप को कुछ भी पता बना नहीं के पेश कैसे, कर देना। बिल्कुल। हाँ, ट्रू दैट। बल्कि तुमने ही कही थी ना कि जब वो जो रेस्टोरेंट वाला वीडियो वायरल हुआ था, दो लड़कियों का, तो तुमने ही बड़े जबरदस्त पोस्ट लगाई थी ना कि एक कंट्रोवर्सी की कीमत तुम क्या बिल्कुल जानोगे। बिल्कुल, मतलब यार, मतलब वी कुछ भी, जस्ट नीड दैट वन लेकिन थिंग। अच्छा, हमारे साथ पता है मसला क्या है? कोई ऐसा कोई ट्रेंड आता है या कोई कंट्रोवर्सी होती है, जो लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, दे आर टोटली प्रो ऑफ इट, कि मतलब उस पर ओपिनियन दे दिया, या कोई ट्रेंड आया कोई टिकटॉक का, अगर आपने पार्टिसिपेट कर लिया तो यू आर फाइन। अगर आपने नहीं किया तो आई थिंक यू हैव द राइट टू जज अदर पीपल हु आर, टेकिंग पार्ट इन दैट ट्रेंड और डिस्कशन। तो ये बायसनेस मुझे लोगों की नहीं समझ आती कि भाई जब आप कर रहे थे तब हमने आपको कुछ कहा। नहीं कहा। गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। अच्छा, फोर्थ वन है जो इतना चर्चा हुआ है पीएसएल के प्रमोशनल सॉन्ग का। तो आपने, आई डोंट नो द नेम, कि किसने ये माशाल्लाह हिम्मत की, बट फॉर एग्जांपल इफ यू गॉट स्टक विद द डायरेक्टर, कि जिसने इसको डायरेक्ट किया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कमाल कर दिया। Kamal, yeah, I am not a very, eligible person for this answer because मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है इस तरह की चीजों में कि मैं कोई म्यूजिक डायरेक्शन या म्यूजिक को जज करूं। बट मुझे लास्ट पार्ट अच्छा लगा, लाइक द
rap which was included, I liked that part, was good, but it could be better, हो सकता था और Yeah, of course, which I want to discuss here कि आप जब बात करते हैं ना म्यूजिक इंडस्ट्री की, बिल्कुल पाकिस्तान में और स्पेशली हमारे पास वी आर ब्लेस्ड विद द सिंगर्स, वी आर ब्लेस्ड विद द बिल्कुल बेस्ट कंपोजर्स इन द हाँ वर्ल्ड। आप देखिए इंडिया में नाउ दे आर नॉट मेकिंग एनी म्यूजिक, दे आर नॉट वर्किंग ऑन। तो आपके पास जब इतना टैलेंट है, आप कराची के एक नॉर्मल से बंदे को भी उठा लो जो खुद से अपने शौक के इंटरेस्ट के तौर पे म्यूजिक मेक करता है और लड़के बना रहे हैं, तो why don't you call them and why don't you make a jam session? क्यों नहीं यार करते? हम पहले जज तो कर लें। अभी जैसे रिसेंटली मैं कोई फॉलो नहीं करती, बट आई नो कि ये कुछ हो रहा है। फॉर एग्जांपल कश्मीर बीट्स है, और ये वेलो है या कोक स्टूडियो है, फिर अपना पेप्सी का भी कुछ चल रहा होता है, फिर अभी ये बिस्कॉनी ने स्टार्ट किया है कुछ। तो मतलब एक के बाद एक ब्रांड जार कमिंग। अब मैकडॉनल्ड्स इज स्टार्टिंग विद द रैप थिंग। तो पीपल आर लाइक कि अब ये भी, अब वो भी। अरे तो भाई मसला क्या है? अच्छी बात है ना, हो रहा है, बहुत सारा टैलेंट सामने आएगा, एंड पीपल विल गेट मल्टीपल प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर स्किल्स। तो लेट इट बी। अब आपको इससे ही मसला है कि कोई चीज अच्छी हो रही है। टैलेंट भी नहीं आना चाहिए, आगे कुछ भी नहीं आना चाहिए, बस बोर बैठे रहे। वो कहते हैं ना, हाँ, बोर बस बना बैठे दो रहे। रात को। मतलब अगर कोई आ रहे हैं, मैं तो मतलब इस बात पे खुश होना चाहिए ना कि ब्रांड्स आर वर्किंग ऑन दिस साइड एंड ट्राइंग टू ब्रिंग मोर टैलेंट ऑन बोर्ड। तो अच्छी बात जब है भाई, कोक अप्रिशिएट करो। लॉन्च हुआ था तो वो कितनी एक डिफरेंट थीम थी कि आप जो बिल्कुल। है वो, और कितना म्यूजिक उसके जरिए हमारे सामने आया। क्रिटिसाइज, असल में मसला ये, वी डोंट नो हाउ टू क्रिटिसाइज। हमें आता ही नहीं है। हम सामने वाले को बस बिल्कुल हमें हमें थीम जलील बनानी, करके कि दलील कहाँ करके रखना छोड़ है। आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। सही बात है। खैर बहरहाल बहुत जबरदस्त। बस एक लास्ट चीज है, यू वांट टू डिस्क्राइब बेनिश इन वन लाइन? A person who is never giving up. वाओ, बेहतरीन चीज हो गई है। बहुत जबरदस्त, हर चीज तुम्हारी इंस्पिरेशनल थी थ्रू आउट। यू आर टॉकेटिव, यू आर गिविंग मैसेजेस टू द पीपल। और ये भी हमारा एंड हो गया है कि क्या होता है कि मैं अपनी मिसाल दूं, जब भी मैं कोई चीज स्टार्ट करती हूँ तो कुछ थोड़ा बहुत क्रेडिट ये जाता है, हाँ, ऐसे लोगों को, जैसे कि तुमने बताया कि नेवर गिव अप। ये जो गिव बिल्कुल। अप, ये जो चीज है, ये जो हिम्मत हार देना है, ये जो आगे नहीं जाना है, ये ट्रू। बहुत रिक्वायर करती है आजकल के, स्पेशली सोशल मीडिया जितना इन हो एग्जैक्टली। गया है ना। पीपल हम्म। वांट टू एडमिट यू कि यार आप नहीं हैं इस काबिल, तो आप रुक यार जाएं। मसला ये है कि हम लोग का मसला ये है, हम गिव अप तब कर देते हैं जब हमारा कंपटीशन है दूसरे लोग होते हैं। इफ वी आर कॉम्पिटिंग विद अदर पीपल, इवेंचुअली वी विल गेट ड्रेन्ड। आप कर लें, आप मुझसे कम। आप मैं अगर कल को ये कोशिश करूँ ना कि यार रिमशा के ये आइडियाज है, मैं जो ना इससे बेहतर आइडियाज ले आऊंगी और मैं उन पे वर्क करना शुरू करूंगी। नाउ माई स्पिरिट इज कम्पीटिंग विद यू, एंड इवेंचुअली मैं हो सकता है 4-5 आइडियाज ऐसे ले आऊं जो तुमसे बहुत अच्छे भी हो, उन पे वर्क भी कर लूं, बट छठे आइडिया पे ना इवेंचुअली गिव अप कर दूंगी, बिकॉज दैट वोंट सिंक विद माई एनर्जी। मैं अगर अपने आप से compete कर रही हूँ मैं अपनी एक रिसेंट एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अभी टिकटॉक पे अकाउंट बनाया है और मैंने लिंक्डइन पे भी बनाया है। दीज टू प्लेसेस वर समथिंग, एक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल है और एक चीज है जो अभी बहुत ज्यादा या क्रिटिसिज्म फेस कर रही है। तो आई मेड अकाउंट ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स ऑन दिस वीकेंड। सो क्योंकि मुझे खुद अपने आप से compete करना था। अगर मैं टिकटॉक यूज कर रही हूँ तो आई एम लर्निंग अ न्यू स्किल। मतलब अभी मैं तुमसे यहाँ लाइव सेशन करने से पहले आई वाज एडिटिंग अ वीडियो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और लिंक्डइन की जहां तक बात आई तो वहां पे भी कॉन्स्टेंटली आई वाज वर्किंग कि किस तरह से उस चीज को वो कर लिया जाए। अगर मैं दूसरे लोगों को देख के आती है यार ये लिंक्डइन पे आ गया या ये टिकटॉक पे आ गया, मैं भी चली जाती हूँ। तो ये शायद ये मैं नहीं तो कर यही सकती है ना। कि जब हम पर्सन टू पर्सन कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, तो हमारा हाँ अपना एक स्पेक्ट्रम छोटा हो बिल्कुल। जाता है, हाँ हमारे हाँ। अपने ग्रो करने की जो है वो तो चीज हमें कम हो पर्सनली जाती है। लगना होता है कि वो बहुत बड़ा हमने कोई तीर मार लिया है, ये बट ऐसा हमारा कुछ है। नहीं होता। मैंने ट्राई एग्जैक्टली। किया हुआ है, तो इसलिए आई एम शेयरिंग के डोंट डू दैट। जबरदस्त। वैसे पता है कुछ चीजें मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। आज मैं इस इतनी बात हो रही है तो मैं भी बताऊं कि मैं हमेशा आई वांट अदर पीपल कि जो आके मेरे से ये बात करें। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं खड़े हूँ, कैमरा अपने सामने रखूं और मैं शुरू हो ये जाऊं। ये बस है, मैं नहीं ये कर तो सकती, मेरे मेरा साथ भी कुछ है और ये। है। तो
Rimsha, that's your skill ना, you are a good host, you can ask good questions. मतलब देखो तुमने कितने अच्छे अच्छे questions बनाए, अब वो मेरे माइंड में तो कभी नहीं आ सकते थे अगर मैं किसी को उस तरह होस्ट मैंने करती जिसका कितना तुमसे पूछा कि विनेश कुछ बता दो, कुछ हेल्प कर दो। आइडिया, मैंने कोई हेल्प नहीं की तुम्हारी, मैंने तुमसे किसी बात का जवाब भी नहीं दिया, मैंने यही कहा था कि यू विल प्रिपेयर एंड यू विल आस्क मी डायरेक्टली। सबसे जबरदस्त बात ये है कि जो सारे लोग सुन रहे हैं, दिस इज नॉट स्क्रिप्टेड। इवन ये कि वो सुनने पे भी तैयार नहीं थे कि मुझे प्लीज मत बताओ अपने क्वेश्चंस, मैंने सुनना ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, कल रात को तो मैंने तुम्हें कहा श्रीमशा बात ही नहीं करनी है, कल करेंगे बात। इस बारे कब हो जाएगा सेशन, बस ठीक है। बट विनेश, वी हैव टू डू दिस ऑफन। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स सुन रही हूँ। या हम लोग को करना चाहिए ये, क्योंकि हमारा जो है वो हमारी एनर्जी मिलती है और हमारी जो है वो डेफिनेटली आई एम इन, मुझे भी मजा आएगा कि मुझे कुछ खुद को तैयारी नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा। तो मैं जब तुम बोलोगी, मैं रात को जो लेट नाइट सब के बच्चे सो जाते हैं, तो वी कैन डेफिनेटली have some more women on board and we can have chit chat, it would be very much fun. एग्जैक्टली। अब नेक्स्ट राहत को लेंगे बिल्कुल बिल्कुल, और एक वुमेन आयर टाइप कुछ कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे इंशाल्लाह। जबरदस्त से चटपटे से टॉपिक पे, क्योंकि बिनेश हैज समथिंग मोर टू एक्सप्लोर और अभी भी जो है वो कुछ मुझे करना है, तो बस बहुत सारी अच्छा। उल्टी बातें करवा लेना तुम मुझसे यहाँ पे। नहीं यार, बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी एंगेजिंग। अल्लाह मियाँ आपको इसी तरह तरक्की से नवाजे और भी आगे लेके जाए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर दोबारा से। और आप सबका भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने कंटिन्यूअसली इस सेशन को देखा, और जो मैंने क्वेश्चंस पूछे उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जो रैपिड फायर राउंड था मैं उसमें जाके भी, देख रही हूँ सारे कमेंट्स यहाँ से है ना? जाने के बाद। सब लोगों ने किया, मेरा, रोमेसा, सब लोग माशाल्लाह से। सो थैंक Awesome. यू सो मच। Thank you guys for watching. ये यकीन आ रहा है कि हमने बोर नहीं किया आप लोगों को। हाँ एग्जैक्टली, मैंने देख रही हूँ सारे लोगों ने कहा कि इतना सेशन रहा, और कोई भी यहाँ से वापस नहीं गया। लास्ट टाइम मुझे बड़ा Amazing. गुस्सा आया था, सारे के सारे ना वापस चले गए थे, तो मैं ना ये गलत है लास्ट। यार, ये गलत है, लाइव सेशन करने में बहुत मेहनत जाती है, तो if you guys can join and motivate the person who is hosting and actually bringing people on board for the group, तो अप्रिशिएट किया करें। गुड जॉब रिचा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी भी दिल नहीं चाह रहा जाने का, क्योंकि इतना जबरदस्त लोगों का मुझे ये फीडबैक आ रहा है। लैपटॉप अपने हस्बैंड को देना है, he needs बट to बट study. बट सारे सवालात खत्म हो गए, विनेश ने बड़े अच्छे से मुकाबला किया सब चीजों का। और बहुत जबरदस्त। चलो यार, थैंक यू सो मच, वी विल डू दिस Thank you ऑफन। ओके, so much. Signing off. Bye bye. बाय, अल्लाह हाफिज।